So here in this video we will continue our discussion regarding quantum chemistry, and in this video we will see the contrast between classical and quantum mechanics. हम लोगों को quantum mechanics का ज़रूरत क्यों है वो हम देखेंगे, क्योंकि classical mechanics is more easier to think and to imagine. So why we need quantum mechanics? So let's try with an example. For example, we are considering here just one dimension, okay, only 1D picture, and we have a particle here, okay. This is like a particle, so it's moving in these directions, and we know from the Newton's laws of motion, precisely the second law of motion, that is F equals to ma, right? So the force acting on this particle, let's say that is F, and F equals to m into a. Actually, a is the acceleration of this particle. The particle is in accelerations, and the mass of the particle is, say, m. So F equals to m into a, and we know that acceleration is nothing but the second differential of displacement with respect to time. So a is nothing but d2x by dt squared. So F equals to m into d2x by dt squared. Now here we can see that it's a second order differential equation. So we will, if we integrate this equation, we will get two constant. So here after double integration we will get displacement, and that will be function of this time, right? So x will be a function, that is g is a function, and this is a function of time, as well as we will have two integration constant, say c1 and c2. Why why we have two constant? Because it is differential of second order, d2x by dt square. If it is dx by dt, then we will have only single constant, okay. तो हमको यहाँ पे मिल गया x is a function of g of t, c1 and c2, ठीक है. c1 c2 are integration constant, and it is a function of time. So x is a function of time. नाउ क्वेश्चन इज, हम लोगों का एम क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में, हम लोगों का सॉरी साइंस में या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोगों का एम क्या है? एक्चुअली एम इज, हम लोग अगर जान पाए अभी कोई भी पार्टिकल का पोजीशन क्या है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय बाद उस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, हमको बस यही जानना है. उस पार्टिकल का स्टेट क्या होगा, हमको बस यही जानना है, ठीक है. सो from this equation x equals to g of t c1 c2, हम लोग आफ्टर सर्टेन टाइम, फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड, उस पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पे होगा वो अगर हम लोग जानना चाहे, हमको ये जो c1 और c2 दो अननोन इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है. अदरवाइज हम लोग नहीं बोल सकते आफ्टर सर्टेन टाइम x का वैल्यू क्या होगा. So here we are assuming at t0 time, that means at present time, or at the initial time, okay, at t equals to 0, जब पार्टिकल शुरू किया था चलना, तब पार्टिकल का पोजीशन क्या था, x0, ठीक है. So at t0 the position was x0, let's say, okay. So at t0 क्या होगा, ये इक्वेशन t की जगह लिखेंगे t0, और x क्या होगा, x होगा x0, and c1 c2 तो they are constant, so no need to change these two integration constant. तो क्या होगा, ये जो नया इक्वेशन बना हम लोगों को, ये नया इक्वेशन से हम लोगों को c1 और c2 का एक रिलेशन हमको मिलेगा, ठीक है. देन क्या होगा, अब एक सिंगल इक्वेशन से हम लोग दो अननोन वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करें, इसमें हम लोगों को एक और इक्वेशन चाहिए, और वो एक और इक्वेशन क्या है, कैसे हम एक नया इक्वेशन बनाए, हम ये जो x इक्वल्स टू जी ऑफ टी c1 c2 है, हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए विद रेस्पेक्ट टू t टाइम. सो dx by dt इक्वल्स टू, अब dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, and that will be ddt of g of t c1 c2.
जस्ट राइट हैंड साइड पे हम लोग डी डी टी लिख दिए, ठीक है, मतलब टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट किए। ओके, सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी v इक्वल्स टू डी डी टी जी ऑफ टी c1 c2। तो इसमें क्या है, वेलोसिटी, हम वेलोसिटी कहाँ से निकालें, हम लोगों को नहीं पता। हमने क्या कि एट टी जीरो टाइम पे, जब टी जीरो है तब क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज v0, सो एट t0 दिस इज v0। ओके, तो हमको क्या होगा, हमको t का वैल्यू पता चल जाएगा, t0 क्या है, v0 क्या है पता चल जाएगा। ओके, so then we will have c1 and c2, another equation which is based on c1 and c2। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। सो हमको इक्वेशन नंबर 1 पे भी c1 एंड c2 है, इक्वेशन नंबर 2 पे क्या है, c1 एंड c2 ही है। दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, c1 c2 निकाल लेंगे। अगर हमको c1 c2 मिल गया तब हम फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन हमको c1 c2 मिल जाएगा। हमको एक पर्टिकुलर एक सर्टेन टाइम के बाद उसका पोजीशन क्या होगा हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। सो ऐसे ही हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करके हम लोग किसी भी पार्टिकल की, इट इज नॉट कन्वीनियंट टू से पार्टिकल, इट इज कन्वीनियंट टू से अ सिस्टम और बॉडी। ओके, तो हम किसी भी बॉडी के लिए हम लोग फ्यूचर स्टेट निकाल सकते हैं, मतलब फ्यूचर में वो कहाँ पे रहेगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इतना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक इलस्ट्रेशन लिए है, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल ऊपर से अर्थ का जो ग्रेविटी होता है उसके तरफ नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है। ओके, तो क्या होगा, उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल्स टू माइनस एम इंटू जी। माइनस साइन क्यों आ गया, ड्यू टू दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये ग्रेविटी की तरफ आ रहा है। सो F इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम इंटू जी। नाउ व्हाट इज जी, जी इज लाइक एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो दैट विल बी इक्वल्स टू m into d2x by dt square। Actually F from where this come, from where is this coming? We know F equals to m into d2x by dt square as well as F equals to minus of m into g. So these are two separate one. Okay. Now getting these portions only, these two right terms. So this will be minus of mg equals to m into d2x by dt square. M and m are cancelled out. Then we will have d2x by dt square equals to minus g. Now we know that we need to integrate this equation, this differential equation, and this is second order differential equation. Okay, and we know after a single integration we will have dx by dt only, and that is equals to minus of g t plus c1। हम लोग क्या किए, हम लोग बस सिंगल इंटीग्रेशन किए, ठीक है। सिंगल डबल इंटीग्रेट, डबल डिफरेंशियल को अगर हम लोग सिंगल इंटीग्रेट करें हमको सिंगल डिफरेंशियल मिलता है, एंड ये हम t से इसको इंटीग्रेट कर लिए, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ g इंटू टी, राइट। एंड वहां पे क्या होगा, एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा दैट इज c1। नाउ dx by dt क्या होता है, ये होता है v। अब क्वेश्चन ये आता है हम लोगों को ये c1 कांस्टेंट चाहिए, तो c1 कांस्टेंट कहाँ से हम लोग इसको ला सकते हैं, हम लोग क्या किए एट t0 पे उसका वेलोसिटी है v0, हम लोग इसको कंसीडर किए, तो हमको एक नया इक्वेशन मिल गया दिस वन, v0 इक्वल्स टू माइनस gt0 प्लस c1। तो c1 क्या होगा, c1 यहाँ पे हो जाएगा v0 प्लस gt0, g इज कांस्टेंट, v0 हमको पता है, t0 हमको पता है, तो हमको कोई नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये होगा c1, c1 इज अ कांस्टेंट। नाउ द क्वेश्चन इज ये जो v0 है, v0 कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग वो तो वेलोसिटी नहीं पता, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं dx by dt, that is velocity, that means this equation, I am talking about। Okay, so dx by dt equals to minus gt plus what is c1, c1 is v0 plus gt0। Okay, I'm just inputting the value here।
Now we need the final position, not the final velocity. So we need to integrate this equation, this differential equation. So ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू x0. ठीक है, x0 कहाँ से आ गया, एट t0 टाइम पे उसका पोजीशन है x0. हम इसको ऐसे पकड़ के चले, ठीक है. एंड ये हो जाएगा माइनस, ये जो माइनस gt है, जो gt ऑफ dt उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस हाफ g अंडर ब्रैकेट t माइनस t0 होल स्क्वायर. ठीक है, हम यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे लगा लिए जैसे t0 और ये है t. ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं. तो माइनस हाफ g ऑफ t माइनस t0 स्क्वायर प्लस v0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा t माइनस t0. ठीक है, और कुछ नहीं. ये जो gt0 टर्म है ना, ये टर्म ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, अब चाहो तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो या फिर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट लेके इंटीग्रेट कर सकते हो. आपको फाइनली ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है, ये लास्ट वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा. तो ऐसे हम लोग इसका फाइनल, ये जो पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका फाइनल पोजीशन हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं टू डिटरमाइन द फाइनल स्टेट ऑफ द पार्टिकल और ऑफ द सिस्टम. ठीक है, नाउ क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी एक सिस्टम का स्टेट कैसे डिफाइन होता है. सो स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय सेइंग द पोजीशन, by saying the velocity or momentum, and by saying the force acting on it, and by saying the energy. ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी को स्पेसिफाई करके हम लोग बोल सकते हैं कोई भी सिस्टम का स्टेट क्या है. तो हमको अभी चाहिए एनर्जी, let's say potential energy. We know that F equals to minus dV by dx and also F equals to minus of mg. So from this two right part, from this two part, we will get after integration, that is V equals to mgx plus c, जिसमें c है again integration constant. Okay, but we can easily choose c equals to 0. Okay, so we will have V equals to mgx. Here, why we are choosing c equals to 0? By simplicity. To get our equation simple and for simplicity. Okay, for sake of simplicity. So we will have V equals to mgx. So this is our equation for this particle system. Okay, this system. Anyway, now so according to classical mechanics, हम लोग फ्यूचर स्टेट या फिर फ्यूचर स्टेट कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी का निकाल सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट फ्यूचर स्टेट. फॉर एग्जांपल, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. ओके, एट फर्स्ट वी नीड टू सेपरेट टू कंसेप्ट, दैट इज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. सो व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल? जो हम आसपास देख पाते हैं, मैक्रोस्कोपिक जो बड़ा बड़ा है, ठीक है, उसका हम बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. एंड व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल? जैसे कि मॉलिक्यूल, जैसे कि एटम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दीस आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. सो वर्नर हाइजेनबर्ग, अ साइंटिस्ट, अ ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने बताया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी, इवन एनी एग्जैक्ट कंजुगेट प्रॉपर्टीज हम लोग साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते. ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, फॉर अ पार्टिकल, उसका एग्जैक्ट फ्यूचर स्टेट, एग्जैक्ट पोजीशन एज वेल एज उसका एग्जैक्ट वेलोसिटी फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं. इवन उसका पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग निकाल सकते हैं एग्जैक्टली. सो बट in reality it is impossible to determine the exact position और exact future state हम लोग नहीं निकाल सकते. ठीक है, सो ये है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का एक
contrast. Okay, so we have several experimental evidence and we know that this statement is right, and classical mechanics is nothing but just an approximation of this new mechanics that is called quantum mechanics. सो क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हुए? क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली इन रियलिटी फ्यूचर स्टेट नहीं निकाल सकते किसी भी पार्टिकल, किसी भी सिस्टम का, एंड साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड वेलोसिटी भी नहीं निकाल सकते. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. एंड सो यहाँ से शुरू होगा एक नया मैकेनिक्स दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स. सो एक्चुअली कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी सिस्टम का एक फ्यूचर स्टेट हम लोग एग्जैक्टली तो नहीं निकाल सकते, पर उसका एक रफ प्रोबेबिलिटी या फिर उसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं हम वो निकाल सकते हैं. दिस इज व्हाई क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड, क्वांटम मैकेनिक्स इज स्टैटिस्टिकल इन नेचर और क्वांटम मैकेनिक्स इज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर. प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर क्योंकि हम लोगों को बस प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगा, हम लोगों को एग्जैक्टली कुछ भी नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई सबएटॉमिक पार्टिकल का पोजीशन किसी भी एक्स एक्सिस के ऊपर क्या एग्जैक्टली है हम नहीं बोल सकते, बट एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे उस पार्टिकल का पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है हम क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं. ठीक है, ओके. सो ऑन द नेक्स्ट वीडियो वी विल start the quantum mechanics and we will move further. Thank you so much. Hope you understand this video.